أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں میم؟ الحمدللہ، آپ لوگ کیسی ہیں؟ وعلیکم السلام الحمد للہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ہم لوگ اپنی 40th کلاس میں پہنچ گئے اور جیسا کہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ یہ سب آپ لوگ کر چکی. آج ہم لوگ کریں گے جملہ اسمیہ میں تخصیص یا حصر کا مفہوم پیدا کرنا. تخصیص یہ دیکھیں خاص سے بنا ہوا ہے نا، خاص کا مفہوم مطلب ایکسکلوسیو کر دینے والے. جملہ اسمیہ کو کیسے ایکسکلوسیو کر دیا جائے، خاص بنا دیا جائے، اور پھر اس کے ترجمے میں ہم اردو اس تخصیص کو اور ابھی حصر کو بھی بتاتے کہ اس تخصیص کو کس طرح ظاہر کرتے ہیں اردو میں، ہی لگا کے. جیسے اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے، اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے، ہی لگا دیتے ہیں. اب کیا ہو گیا کہ وہ بالکل ایسا ہو گیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں. تو اس کو کہتے ہیں تخصیص. جو یہ پیدا کرنے والی بات تھی یہ صرف اللہ ہی تعالی کے ساتھ مخصوص ہو گئی. ٹھیک ہے، اور اسی کو تخصیص کو ہی حصر کا بھی مفہوم کہتے ہیں. یہ سمجھ لیجئے یہ اردو کا لفظ ہے اور عربک میں حصر کا مفہوم آپ بہت سنیں گی. اکثر جب آپ ترکیب دیکھیں گی آیات کی تھوڑا اور پڑھنے کے بعد تو وہاں پہ وہ لوگ کہہ دیں گے کہ یہ خبر جو ہے وہ معرفہ ہے کیونکہ یہ حصر کا مفہوم دے رہی ہے. ٹھیک ہے، اور آج دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے آپ ابھی جب میں نے بولا خبر معرفہ ہے تو آپ کہیں گی یہ تو ساری ہی باتیں الٹ پلٹ کر رہی ہیں. پہلے انہوں نے کہا کہ مبتدا رفع ہوگا اور لاسٹ کلاس میں اس کو بنا دیا نصب. اور آج کی کلاس میں آپ دیکھیں گی کہ خبر اب تک جملہ اسمیہ جو آپ نے اتنی ساری کلاسز جملہ اسمیہ کی ان سب میں خبر، اسی لیے جب کہا جاتا ہے نا کہ عام طور پر معرفہ، عام طور پر نکرہ، اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو قرآن پہ جانے سے منع کیا جاتا ہے جب تک ایٹ لیسٹ ایلیمنٹری لیول کی گرامر ہم پوری نہ پڑھ لیں. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اگر یہ سمجھ لیا کہ مبتدا رفع کی حالت میں ہوگا اور پھر ان اللہ علی کل شیء قدیر آپ دیکھ رہی ہیں وہاں پہ تو اللہ نصب کی حالت میں، لفظ اللہ سوری وہاں پہ تو لفظ اللہ نصب کی حالت میں آ گیا، تو یہ بات تو غلط ہو گئی. تو یہ جو رول، یہ ٹیبل ہے یا کوئی بھی گرامر کا رول ہے، اس کو میں بہت دفعہ بتا چکی لیکن بہت دفعہ بتاتی رہوں گی. وہ موسٹ آف دا ٹائم کے لیے ہوتا ہے. ایکسیپشن ہمیشہ موجود ہوں گے. لاسٹ کلاس میں آپ نے مبتدا کے اعراب کی ایکسیپشن دیکھی. آپ نے دیکھا کہ جب انا داخل ہوا تو وہ نصب کی حالت میں چلا گیا، اور آج آپ خبر کے نکرہ ہونے کی ایکسیپشن دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. تو کچھ چینجز جملہ اسمیہ میں لائے جاتے ہیں جس سے وہ اس جملے میں حصر کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے. اب میں تخصیص ورڈ یوز نہیں کروں گی، حصر ہی یوز کروں گی، اور آپ سمجھ جائیں کہ اردو کے ترجمے میں پھر ہی کا بھی ایڈیشن ہوتا ہے. تاکید کے لیے لفظ استعمال ہوتے تھے اردو میں بے شک، یقیناً اور البتہ، جبکہ حصر کے لیے اب اس کو خاص کرنے کے لیے ہم جس اردو لفظ پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں وہ ہے ہی. لیکن جیسا کہ میں بار بار کہتی ہوں کہ یہ ہی اور البتہ اور بے شک، یہ ساری چیزیں ان عربک جو یہ حصر کے مفہوم میں جو میننگ چھپا ہوا ہے اس کو اس حد تک ظاہر نہیں کرتے. انشاءاللہ تعالی دھیرے دھیرے جب آپ یہ چیزیں بھی سمجھ لیں گی اور پھر اس روشنی میں آیات کو دیکھیں گی تو آپ کو خود ہی حصر کا صحیح معنی آپ کے دل میں انشاءاللہ تعالی آ جائے گا.
تو دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے، پہلے میں ایک پلین پیپر لوں اور اس پہ آپ کو پہلے سمجھا لوں. یہ جملہ ہے اللہ غفورن جو آپ اسکرین پہ دیکھ رہی ہیں، اور یہ جملہ پورے قواعد کو جو آپ نے اس ٹیبل میں اوپر نہیں جا رہی، چلے لے چلتی ہوں. اس جملے میں، اس ٹیبل میں جو آپ نے دیکھی ہے سب پوائنٹ جملہ اسمیہ کے، اس کو یہ فالو کر رہا ہے سب. اللہ، آپ دیکھیں کہ وہ معرفہ ہے، ال سے شروع ہو رہا ہے، اور لفظ مطلب علم ہے، اس میں علم ہے، اللہ تعالیٰ کا نام ہے، تو وہ معرفہ ہوا اور رفع کی حالت میں ہے. اور عدد، اور عدد واحد ہے، جنس مذکر ہے. خبر میں نے کیا لکھا؟ غفورن. تو خبر آپ نے دیکھی تنوین کی وجہ سے نکرہ ہے. خبر نکرہ ہے. ایک منٹ دیکھ لوں، مائک انمیوٹ کیا میں نے جی. غفور خبر نکرہ ہے، اور پیش کی تنوین بتا رہی ہے کہ حالت رفع میں ہے. عدد واحد ہے مبتدا کے حساب سے، اور جنس مذکر ہے اکارڈنگ ٹو مبتدا. تو یہ جملہ جو آپ کو انفارمیشن دی گئی تھی جملہ اسمیہ کی بیسک انفارمیشن، اس پہ پوری اتر رہی ہے. اور اس کا ترجمہ آپ کرتی ہیں. اللہ غفور جو ہے یہ مبالغے کا صیغہ ہے، تو مبالغے کی وجہ سے آپ کر سکتی ہیں کہ اللہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے. لیکن چلیں ابھی ہم لوگ حسر کا مفہوم سمجھ رہے ہیں، تو یہاں پہ ہم کر لیتے ہیں ترجمہ. اللہ اللہ بخشنے والا ہے. ٹھیک ہے، اس وزن میں بھی والا کا میننگ آتا ہے، جیسے فعیل کے وزن میں آتا ہے نا، ویسے ہی فعول کے وزن میں بھی والا کی میننگ آتی ہے. یہ سب ایکسٹرا چیزیں ہیں، اس پہ ابھی آپ کو دھیان دینے کی ضرورت نہیں، بس سنتی چلیں. اب ہمیں اس میں حسر کا مفہوم پیدا کرنا ہے، تو اس کے لیے کیا چینجز کرنے ہوں گے؟ لفظ اللہ تو ایسے ہی رہے گا، اللہ. اس کے بعد کیا کرتے ہیں کہ یہاں پہ اس لفظ کے حساب سے، مبتدا کے حساب سے رفع کی ضمیر لائی جاتی ہے. ہوا مبتدا اور خبر کے بیچ میں کیا لایا جاتا ہے؟ مبتدا کے حساب سے رفع والی ضمیر لائی جاتی ہے. اب دیکھیں یہ تو یہاں پہ تو رفع کی حالت میں یہ تھا ہی، لیکن یہ ایڈیشن کیا جا رہا ہے اس جملے میں حسر کا مفہوم پیدا کرنے کے لیے. اور صرف یہی نہیں، خبر کو معرفہ بنا دیا جاتا ہے، الغفور ہو جائے گا یہ. اب اس کا ترجمہ ہو جائے گا اللہ ہی بخشنے والا ہے. کیا ترجمہ ہو جائے گا؟ بالکل، یہ بخشش، یہ جو خبر ہے یہ اللہ کے لیے مخصوص ہو گئی، اور اس جملے میں حسر کا مفہوم پیدا ہو گیا. اردو میں اس کا کریں گے اللہ بخشنے والا ہے، اور اس کا کریں گے اللہ ہی اور اس ہوا کا ترجمہ نہیں کیا جاتا. اب جب ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کرتے ہیں تو ظاہر ہے وہاں پہ جو آپ نے ابھی کیا ہوگا تو کہتے ہیں اللہ ہوا وہی الغفور بخشنے والا ہے. ٹھیک ہے، اس طرح ترجمہ کرتے ہیں، کیونکہ پھر ہوا کے باکس میں آپ کیا لکھیں گی؟ آپ کو تو کچھ وہاں لکھنا ہے ہر لفظ کا، اور ہوا کا مطلب ہے وہ. تو آپ دیکھیں گے وہاں پہ آپ اللہ ہوا وہ یا وہی ہوتا ہے. یہ ہی کا ترجمہ کرنے کے لیے وہ کے ساتھ ہی لگاتے. اللہ ہوا وہی الغفور بخشنے والا ہے. یا ہو سکتا ہے کہ ترجمے میں اس وقت میرے پاس ہے نہیں ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن جس سے میں چیک کر سکتی، کہ ہو سکتا ہے وہاں پہ ہوا کی آپ نے وہی لکھی ہو، تو بات صحیح ہے ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کے حساب سے. لیکن یہ ہوا یہاں پر اس لیے موجود ہے کہ یہ اس جملے کو حسر کا مفہوم دے رہا ہے. اب اگر یہاں پہ کوئی جمع کا لفظ ہوگا تو اس کی حساب سے ہم آ جائے گا. ڈیپینڈ کرے گا کہ مبتدا کیا ہے، اسی حساب سے انتا ہوگا. تو یہاں پہ کوئی لفظ ایسا ہوگا جو سامنے والے سے بات کر رہے ہیں تو پھر اس کے آگے یہاں پہ انتا لگائیں گے. یاد رکھیں ضمیر رفع والی آئے گی، رفع کی ٹیبل سے ضمیر پک کریں گی. ابھی آپ کو کرنا ہوگا، اس لیے میں یہ سب بتا رہی ہوں بار بار. ٹھیک ہے،
تو اس طرح سے یہ بھی ہو سکتا ہے. اب دیکھیں یہ حسر کا مفہوم ہو گیا. اسی میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انا بھی داخل ہو جائے. بے شک اللہ ہی بخشنے والا ہے. تو یہ انا کے ساتھ اب یہ کیا ہو جائے گا؟ ان اللہ ہو جائے گا. ان اللہ هو الغفور. اب اس کا ترجمہ ہوگا بے شک اللہ ہی بخشنے والا ہے. تو یاد رکھیں کہ جملوں میں قرآن میں جب آپ دیکھیں گی کہ تاکید بھی ہو رہا ہوگا اور کبھی کبھی تاکید در تاکید جو میں کہتی ہوں انا بھی آ رہا ہوگا اور لام تاکید بھی آ رہا ہوگا اور حسر کا بھی مفہوم آ رہا ہوگا. کیوں ایسا ہو رہا ہوگا؟ جس سے کہ جو بات کہی جا رہی ہے اس کا یقین ہمارے دل میں اتر جائے. جب آپ یہ سب باتیں سنتی ہوں گی تب یہ سب پڑھنے کے بعد لگنے لگتا ہے نا کہ جو ہم یہ جاننے سے پہلے جو تلاوت کر رہے تھے وہ کیا کر رہے تھے، وہ کیا کر رہے تھے کہ کچھ سمجھ میں ہی نہیں آیا. ہم نے 10 نیکی کے چکر میں ہم پڑھتے رہے، عمل کی تو کبھی سوچی ہی نہیں اور یقین بننے کی بات تو قرآن سے آئی ہی نہیں ہماری زندگی میں. تو اس مشن کو لے کے چلنا ہے کہ ہر انسان کو دیکھیں ہم اس عمر کے حصے میں پہنچ گئے کہ ویسے تو اللہ تعالیٰ برکت ڈالنے والا ہے کسی بھی کام میں. کرتا تو انسان نہیں ہے، مطلب اپنی صحیح جس کو کہتے ہیں بس کوشش کرتا ہے. انسان کوشش کرتا ہے، کام اللہ ہی تعالیٰ کی طرف سے ہو رہا ہوتا ہے، برکت اس میں اللہ ہی تعالیٰ کی طرف سے ہو رہی ہوتی، تو نا امید ہونے کی بھی بات نہیں ہے. لیکن اٹس اے فیکٹ کہ لیٹ تو تھوڑا ہو ہی گیا ہے نا. لیکن کم از کم ہم لوگوں میں شوق پیدا کر کے چلے جائیں. کم از کم لوگوں کو یہ شوق ہو جائے کہ ہاں قرآن کو سمجھ کے پڑھنا ہے، یہ ہدایت کے لیے آیا ہے، یہ ثواب کے لیے نہیں آیا ہے، یہ نیکی کمانے کے لیے نہیں آیا ہے. صرف وہ والی نیکی بونس والی جو 10 نیکی ہر حرف کی ہے وہ بونس ہے. یہ آیا تھا ہدایت کی. اور ہدایت کب ملے گی؟ جب ہم سمجھ کے پڑھیں گے. اگر ہم روز ایک رکوع پڑھتے ہیں، اگر روز ایک پارہ پڑھتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ کتنی ساری بات آتی ہوگی اس میں، لیکن ہمیں تو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آیا، ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں چلا. ہم نے پڑھا اور رکھ دیا اور اٹھ گئے اور جیسے پہلے تھے اس رکوع کے پڑھنے سے پہلے سیم ویسے ہی رہ گئے. سبحان اللہ. تو یہ لفظ ان اللہ هو الغفور، بے شک اللہ ہی بخشنے والا ہے، اور غفور میں مبالغے کا صیغہ ہے. تو اگر وہ بات بھی پتہ ہے تو ترجمے میں ہوگا بہت زیادہ بخشنے والا ہے. الحمدللہ. چلتے ہیں اب اپنی ایکسرسائز پہ. میں ہی کر دوں کیا آج؟ اب یہ دیکھیں اولئک مفلحون، وہ لوگ فلاح پانے والے ہیں. یہ مفلح ورڈ بھی جو جب آپ فیل کریں گے انشاءاللہ تعالی تب آپ دیکھیں گی کہ یہ بھی مفلح کے وزن پہ آنے والے بھی فاعل ہی ہوتے ہیں، مطلب کام کرنے والے ہی ہوتے ہیں. مطلب اب مفلح فا لام ہا اس کا روٹ لیٹر ہے تو فلاح پانے والے، والا کا میننگ آ جائے گا. ٹھیک ہے. مسلم اسلام لانے والے، مؤمن ایمان لانے والے، تو یہ سب مفلح وہی وزن ہے. ٹھیک ہے. تو اولئک مفلحون. اب آپ کو اس میں حسر کا مفہوم پیدا کرنا ہے تو آپ کیا کریں گی؟ اولئک ہم لگائیں گی. اولئک پلورل کا صیغہ ہے نا تو ہم آئے گا یہاں پہ، جو ضمیر آئے گی رفع کی ہم آئے گا، اور اس کو مفلحون نکرہ ہے، اسے آپ کو معرفہ کرنا ہوگا حسر کے مفہوم کے لیے. تو ہو جائے گا اولئک هم المفلحون. اب دیکھیں یہ لفظ، یہ جب میں نے پڑھا آیت کا یہ فریز تو آپ نے کتنا پڑھا، لیکن کیا کبھی یہ احساس ہوا کہ یہ بہت ہیوی بات ہو رہی ہے کہ اب اس سے پہلے جو بات آئی ہے وہی لوگ ہی فلاح پانے والے ہیں. اس فریز سے پہلے ظاہر آپ دیکھیں یہ آیت کا آخری ٹکڑا ہوتا ہے
इस फ्रेज से पहले जो बात आई है, अगर हमको ये बात समझ में आती होती तो हम उस चीज को अमल के लिए पकड़ते होते ना, कि इससे पहले जो बात हुई है अगर हम वो करेंगे तो इसमें अब कोई शक ही नहीं है कि वो फलाह जो है, फलाह क्या है? फाइनल कामयाबी। तो फलाह मतलब वही लोग हैं फलाह पाने वाले। ये फलाह जो है उन्हीं लोगों के साथ मखसूस हो गई जिनके अंदर वो खुसूसियत पाई जाएगी जो इस फ्रेज से पहले बताई गई है। तो हम चाहेंगे कि वो चीज हमारे अंदर आए, हम चाहेंगे कि वो चीज औरों के अंदर आए। तो समझ में आने का ये फायदा है। अगला देखते हैं, अल काफिरूना वालिमूना। अब देखिए अल काफिरूना ये जमा का सीगा है, तो जमीर आ जाएगी और जाहिर अल काफिरूना इनकार करने वालों की बात हो रही है, थर्ड पर्सन की बात हो रही है। तो जमीर थर्ड पर्सन वाली बॉक्स में से आई मीन गायब वाली जो हमारे 6 बॉक्सेस हैं उसमें से हम जमा वाला मुजक्कर वाला पहली लाइन का थर्ड बॉक्स ले लेंगे। इसलिए कह रहे हैं कि टेबल पूरी ऐसे समझ में आनी चाहिए कि हम किस उसमें 6 6 और 2, ये है टेबल की फॉर्मेट। गायब के 6 बॉक्स, हाजिर के 6 बॉक्स और मुतकल्लिम के 2 बॉक्स। उसके बाद ऊपर की लाइन, ऊपर के 3 बॉक्सेस मुजक्कर के, नीचे के 3 मुअन्नस के, और ये इसी तरह से गायब में भी और इसी तरह हाजिर में भी। और फिर वो सारी चीजें वाहिद, मुसन्ना और जमा, ये सारा हमारे दिमाग में सेट होना चाहिए। अल काफिरूना हुमुल जालिमूना, हुम लगाया और हमने इसको जालिमूना नकिरा है। ठीक है, आपको पता है कि जो जमा सालिम होते हैं अगर ये बिना अल के होते हैं तो नकिरा, और अल के साथ होते हैं तो मारफा। तो ये अभी नकिरा है, इसको मारफा बनाएंगे। अल काफिरूना हुमुल जालिमूना, काफिर लोग ही जालिम हैं, जुल्म करने वाले हैं। अब ये जुल्म करने वाली जो खुसूसियत है वो इनके साथ मखसूस हो गई। अब अगर ये किसी चीज का इनकार कर रहे हैं, यहाँ पे इससे पहले तौहीद का इनकार कर रहे हैं, रिसालत का इनकार कर रहे हैं, आखिरत का इनकार कर रहे हैं, जिस भी चीज का इनकार कर रहे हैं तो वो हम देखेंगे और हम चाहेंगे कि ये चीज हमारे अंदर भी ना हो और औरों के अंदर भी ना हो। आगे चलते हैं। चले आ जाएं। सुभान अल्लाह, हसर का मफहूम इतना दिमाग में है कि सारे नाम ही भूल गए। नफीसा आप आ जाएं। नफीसा। अस्हाबुल जन्नती हम्म, फाइजूना, इसमें हम अस्हाबुल जन्नती हम फाइजूना। एक सही हुआ और एक गलत हुआ। हुमुल फाइजूना। वेरी गुड, माशाअल्लाह। और बहुत ही अच्छा किया इन्होंने कि अस्हाबुल जन्नत, ये मुरक्कब है, इसके बीच में यहाँ नहीं घुसाएंगी। ठीक है, अस्हाबुल जन्नत यहाँ बीच में आप लेके नहीं आ सकती। ठीक है, अस्हाबुल जन्नत ये कौन सा मुरक्कब है नफीसा? मुरक्कब तौसीफी। तौसीफी है, और गौर करें। अस्हाबुल जन्नती मुरक्कब इजाफी। जी हाँ, मुरक्कब तौसीफी होगा तो जी सारी चीजें सेम सेम होंगी। जी जी बिल्कुल। ठीक है, तो अस्हाबुल जन्नती ये मुरक्कब इजाफी है। तो जन्नत वाले, है ना, अस्हाबुल जन्नती का मतलब क्या? जन्नत के साथी, मतलब जन्नत वाले, है ना। और जब आपने कहा हुमुल फाइजूना, तो ये हुम और अल ने क्या कर दिया? वही फाइज मतलब कामयाब होने वाले हैं। जो जन्नत जाएंगे वही कामयाब होंगे। जो जन्नत में एंटर नहीं हुआ
उसको दूसरी कौन सी जगह बची है, बस वहां ही गुजारा है फिर। तो जो जन्नत वाले हैं वही कामयाब होने, ये फाइज, ये फाइल के वजन पर है। ये सब देखिए, मुफलिह, ये भी फाइल का वजन है। फलाह पाने वाले, जुल्म करने वाले, फाइज, और उसी का ऊना फाइजूना, जो आज सुबह की क्लास में थे काफिरून की, उनको ज्यादा समझ में आ रहा होगा। फाइजूना, तो ये हो गया कामयाब होने वाले। तो जन्नत वाले ही कामयाब होने वाले हैं। ठीक है नफीसा? और आपने माशाल्लाह बहुत ठीक है। सही किया कि हमको यहाँ पे लेके आप आई। असहाबुल जन्नती, ये आपका हो गया मुब्तदा, ये पूरा मुब्तदा है। ठीक है? ठीक मुब्तदा है। के बाद आप क्या करेंगी, उस मुब्तदा के हिसाब से आप जमीर लेके आएंगे, और इन्होंने बहुत सही यहाँ पे हम की जमीर लेके आई। वेरी गुड। चले आगे चले, करिए। हादा किताबु का, ये तुम्हारी किताब है। ये तुम्हारी। फरजाना, आपका कोई सवाल है? हाँ, एक मिनट आपका। नफीसा। जी। जी मैम, जब हम इन्ना लगाएंगे इससे पहले, तो मैम फिर हम ये जो ये मुरकबे इजाफी है, इस पूरे को चेंज करेंगे। चले आप चेंज करें, पूरे को चेंज कर दें, लगाए आप चेंज करें। मैम, इन्ना हम्म, असहाब असहाबल जन्नती। यही करेंगी ना आप? इन्ना अस्हाबल जन्नती, यही करेंगी ना? इन्ना ओ, अस्हाबल जन्नता जी, तो नहीं करेंगी? नो मैम। हाँ, तो बस ठीक है। ओके मैम, मुझे ये ये ठीक है, क्योंकि मतलब दोनों को मतलब। अगर आप इन्ना आएगा ना, तो वो सिर्फ इसको कभी भी मुदाफ इलैह चेंज नहीं होगा। ठीक है? मुदाफ इलैह हमेशा हालत जर में ओके ही मैम। रहेगा। तो इन्ना का असर असहाबु की पेश पे होगा और इसको नसब कर देगा। इन्ना असहाबल जन्नती हुमुल फाइजूना हो जाएगा। ठीक है? ओके मैम, ठीक है मैम, कल की जज़ाकल्लाह। क्लास में किया था ये हम लोगों ने, कि जब इन्ना लगाएंगे, तो वहां भी कल की क्लास में था। आप रिकॉर्डिंग जाके सुन लीजिएगा एक बार, कि मुरक्कब इजाफी का मुदाफ ही चेंज होता है इन्ना के आने से। एराब, एराब का असर सिर्फ, एराब की कैफियत सिर्फ मुदाफ पे आती है। ठीक है? जी मैम, उस पे नहीं ठीक होती। है मैम, जज़ाकल्लाह। चल, मैम एक क्वेश्चन मैं भी पूछ लूं प्लीज? पूछ लो। मैम आपने होम जब हम लगाएंगे तो मीम साकिन हालत में जब उसको मिलाएंगे तो फिर इसलिए पेश डालेंगे बिल्कुल। ये होम। देखें कि जब भी, ये तो मैं बार बार कई बार बता चुकी, कि जब हुम आता है, जब दो साकिन आ गए, अब हुम पे भी साकिन, मैं लिख कम रही हूँ, बोल रही हूँ। ठीक है? ये हुम वाला साकिन है, और ये अल वाला साकिन है। अल में भी लाम पे साकिन है ना, वो हमजा पे तो कुछ नहीं होता, ये तो हम लगाते हैं। तो जब दो जी साकिन मैम। आ गए, तो इसलिए हुमुल बोल रहे हैं, हुमुल जालिमूना, हुमुल मुफलिहूना, वो है हुम। ये पेश लगाई जाती है, किस लिए? क्योंकि दो साकिन पढ़ नहीं सकते। ठीक है, अच्छा सवाल है आपका भी। जी मैम। हुम जी ही है वो। ठीक है? अगर आप ब्रेकअप करेंगी, उसका ब्रेक करेंगी, तो आप बोलेंगी हुम और बोलेंगी अज़्ज़ालिमूना। लेकिन जब बोलेंगी तो बोलेंगी अल काफिरूना हुमुज़्ज़ालिमूना। ठीक है? जी मैम। चले चले नफीसा, हादा किताबु का कीजिए। हादा किताबु का। हादा अंतल किताबु। अच्छा, चले। ये इसमें देखें, ये हादा, ये मुब्तदा है, जी। और जी। किताबु का खबर है। अब करें। हम्म, हादा ये, हादा। और किताब का तुम्हारी किताब है, ये खबर है। ठीक है? तो मुब्तदा के बाद आप लेके आएंगी ना जमीर। मैं नफीसा को इसलिए लेती हूँ कि नफीसा सोचने का एंगल इनका बहुत सही है।
غلطی ہو جائے وہ مشکل نہیں ہے، لیکن شی تھنکس آن رائٹ ٹریک، تو میں سوچتی ان کو لوں گی تو مجھے آپ لوگوں کو پڑھانے میں آسانی ہوگی. یہ سوچتی صحیح لائن اس پہ میں ہے، وہ جو کا بات ہے الگ ہے کہ وہ کچھ غلطی ہو جائے. چلے شاباش سوچے. کہ کا کی رفع کی حالت میں تو انتا آئے گا. نہیں تو آپ یہ بتائیں کہ جو ضمیر ہے وہ آپ کا خبر کے حساب سے لائیں گے یا اچھا، مبتدا کے حساب سے؟ خبر مبتدا کے حساب سے لاؤں گی. ہاں تو آپ کتابوں کا پہ کیوں جا رہی ہیں؟ وہ تو خبر ہے. ہاں میں نے جی بتا دیا کہ ہاں ہادہ مبتدا ہے اور کتابوں کا خبر ہے. یہ مرکب اضافی ہے اور یہ خبر ہے. آپ ضمیر لائیں گی ہاں ہادہ ہاں کے حساب سے. اصل میں پرابلم کیا ہے، نفیسہ ایک منٹ، پرابلم کیا ہے کہ ہم لوگوں نے ناؤن کو اسم سمجھا ہوا ہے. ہمیں اسم میں کیونکہ انگلش میں تو دس دیٹ کو ہم ناؤن نہیں سمجھتے نا. دس دیٹ کو ناؤن کہاں سمجھتے ہیں انگلش میں، اور دماغ میں تو ہماری انگلش اور اردو ہی ہے. تو ہادہ بھی اسم ہے. تو ہادہ یہ اچھا، اب ہادہ کس طرح کا اسم ہے؟ ہادہ واحد ہے، ہادہ مذکر ہے، بس اب ضمیر لے آئے. ہاذا ہوں ہو ہوول نہیں، مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا اس کا. یہ تھوڑا کمپلیکیٹڈ ہے. اتنا آسان ہے وہ. نہیں 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 آسان، آسان ہے یہ، لیکن دیکھیں آسان نہیں ہے. نہیں نہیں آسان نہیں ہے. ضروری نہیں ہے کہ کوئی چیز چھوٹی سی ہو تو وہ آسان ہو اور بڑی سی ہو تو وہ مشکل ہو. اب یہ الکافرون الکافرون ظالمون یہ بڑا سا ہے لیکن آسان تھا. یہ مشکل ہے اور میں چاہتی تو میں خود کر دیتی، لیکن جب میں خود کرتی تو آپ لوگ سوچنے پہ مجبور نہیں ہوتے نا. تو اس وجہ سے میں چاہ رہی تھی کہ آپ سوچیں، اور آپ بہت صحیح سوچ رہی ہیں، صحیح اینگل سے. دیکھیں ہادہ ہوا آپ نے بول دیا، آپ نے ہو بولا یا ہوا بولا؟ ہوا بھی بولا اور یہ ہو بھی بولا، دونوں بولے تھے. ہاں تو ہو تو غلط ہو جائے گا کیونکہ وہ نصب اور جر کی ضمیر ہے. ہم نے آپ کو کیا کہا ہے کہ مبتدا کے حساب سے رفع کی ضمیر لائیں. تو ہادہ ہوا، ٹھیک ہے. اب آپ کو ال لگانا ہے نا. اب جی آپ الکتاب کا تو لگا ہی نہیں سکتی کیونکہ وہ تو مضاف تو ال لیتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو بس ال جی نہیں لگائیں گے ہم. ہاذا ہوا کتاب کا، یہ تمہاری ہی کتاب ہے. ٹھیک ہے. ہاذا ہوا کتابو کا. ٹھیک ہے. کیونکہ اب یہاں پہ آپ لگا نہیں رہی ہیں ال، لیکن مجھے پتا ہے کہ اگر یہ مرکب اضافی نہیں ہوتا تو یہ کتاب سے پہلے ال تھا جو کہ لگ ہی نہیں سکتا، اس لیے لگا نہیں سکتے. یہ بات سمجھ رہی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. کہنے کا مطلب ہے کہ یہاں ال ہے لیکن ہم لگا ہی نہیں سکتے تو اس لیے لگا نہیں رہے. تو ہاذا ہوا کتاب کا، یہ تمہاری ہی کتاب ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اس کا ترجمہ ہوگا. اب جیسے ہی آپ نے دیکھا ہاذا ہوا کی، کیونکہ آپ دیکھ رہی ہاذا ہے مبتدا ہے. اب مبتدا کے حساب سے اگر اس کے فوراً بعد ہوا کی رفع کی ضمیر آ رہی ہے تو حصر کا مفہوم آ گیا. اور ال تو مجھے لگانا تھا لیکن لگ نہیں سکتا. ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک ہے. چلیں آگے چلیں. الآخرۃ دار القراری. اچھا یہ بتائیں کہ اس میں مبتدا کیا ہے، لائن سے سوچتے ہیں. مبتدا کیا ہے؟ مبتدا ابتدا میں ہی ہوگا نفیسہ. جی اتنی الآخرۃ. ہاں الآخرۃ جب نہیں آپ پوچھتی ہیں تو میں الٹا سوچنے لگتی ہوں کہ شاید مشکل ہے. نہیں نہیں، مبتدا جب میں کہہ رہی ہوں تو جو ابتدا میں دکھ رہا ہے وہی بولے. الآخرۃ مبتدا ہو گیا اور خبر دار القراری. ہاں دار القراری یہ ہو گئی خبر. ٹھیک ہے، رتو. مبتدا مفرد ہو گیا ہے نا، اور ساری کنڈیشن بھی تو پورا کر رہا ہے. ال ہے اور تو ہے. اب اس میں تو ہوا نہیں لگے گا الآخرۃ کی وجہ سے.
हिया हियल दारुल करारी अल आखिरतु हियल दारुल करारी। मैम आपका माइक म्यूट है। जी हाँ, मैं थोड़ी देर के लिए कहीं चली गई थी बिना आप लोग को बताए। चले, मैं आ गई। अल आखिरतु दारुल तो करारी, जी करिए। अब आपको मुब्तदा ये मिल गया और मैं पूछ रही हूँ कि खबर मुब्तदा मुफरद है और मुब्तदा सारी कंडीशन पूरी कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है। जी वो जो टेबल है पूरी फॉलो कर रहा है ना, मारफा है, रफा है, और जाहिर है अदद जिन्स तो है ही है। और दारुल करारी क्या है, कौन सा मुरक्कब है? मुरक्कब इजाफी है। मुरक्कब इजाफी है। ठीक है, ये मुरक्कब इजाफे की सारी कंडीशन भी पूरी कर रहा है और खबर की भी कंडीशन पूरी कर रहा है। ठीक है, अब ठीक है। चलिए आप हसर का मफहूम डालें। अल आखिरतु हियल दारुल करारी। शाबाश, आपने तो हियल लगा दिया, अल दारू कर दिया। मतलब हियल हिया। दारू में कैसे अल लग जाएगा, क्योंकि ये तो मुदाफ है ना। जी वो भी गलत हूँ मैं, मुरक्कब इजाफी में अल नहीं स्टार्ट आता। अभी तो यहाँ पे बताया कि मुरक्कब इजाफी में बिना अल के ही हसर का मफहूम आ जाएगा, बस आप इसके हिसाब से जमीर लगा दें। सिर्फ हिया आएगा, हिया सही लगा रही हूँ आखिरतु की जी वजह हाँ से। बिल्कुल, माशाल्लाह, हिया एकदम सही लगाया आपने। अल आखिरतु, देखिए अल आखिरतु क्या है, आखिरत की बात हो रही है, किसी थर्ड पर्सन की बात हो रही है ना। जी ये इस पर्सन से मेरा मतलब है कि इस्म, ठीक है, ये थर्ड पर्सन है और बोलता मुझे बता रही है कि मुअन्नस है और वाहिद है। तो बस हिया की जमीर तो माशाल्लाह आपने बहुत सही पिक की, अल आखिरतु हिया। अब उसके बाद आपने जो हियल दारुल करारी का, यहाँ पे गड़बड़ हो गई कि अल नहीं लगेगा कभी भी, दारुल करारी की दाल से पहले अल हो ही नहीं सकता। ठीक है, इसलिए यहाँ पे अल यानी उसको मारफा नहीं बनाएंगे, ये मारफा ऑलरेडी है ही, दारुल करारी मारफा है। चले, लेकिन बस ये समझ ले कि दारुल, बस इसको करेंगे अल आखिरतु हिया दारुल करारी। ठीक है, ठीक है। अल आखिरतु हिया दारुल करारी तर्जुमा करें। का तर्जुमा क्या है? आखिरत मुझे नहीं आता, दारुल करारी। करार का घर कर दे। जैसे कोई चीज, किसी चीज की मीनिंग ना आए तो आपको ये तो पता है ना कि करार का घर, आखिरत करार, ही। इसमें कोई करार उर्दू का ही करार है ये? नहीं नहीं, उर्दू का नहीं है, अरबिक का है। लेकिन हाँ, जैसे एक ठिकाना है ना, आखिरत मौजूद है ना, बस आप तर्जुमा ऐसे करें कि आखिरत ही करार का घर है। आखिरत ही करार का घर है या ठीक ठिकाना है, है। कभी अगर आपसे किसी फ्रेज का तर्जुमा करने को कहा जाए ग्रामर क्लास में, तो आप ग्रामर की यहाँ पे बात हो रही ना, मैं वर्ड मीनिंग तो करा नहीं रही हूँ, तो बस आप वो वर्ड अरबिक का ही ले लें और करार का घर, तो मैं समझ जाऊंगी हाँ, आपको ग्रामर के पॉइंट समझ में आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। इंटरेस्टिंग है, नफीसा को तो बुखार इंटरेस्टिंग आ जा रहा है। है। इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अब करना क्या है, मैं आज सोच रही थी, मुझे मौका नहीं मिला, मैं सोच रही थी कि मैं सारे जुमला इसमिया जो अब तक है उसके थोड़े थोड़े स्निपेट्स लेके एक वीडियो बनाऊं कि सब रिवीजन हो। तो अब आप लोगों का ये काम है, देखिए चीजें ऐड हो रही हैं, अब इंफॉर्मेशन ऐड अप हो रही है, और पीछे वाली ऐसा ना हो कि हमारी मिस होती, पीछे वाली बहुत साउंड बेस होनी, जो पिछला पड़ जाए वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, तब कॉन्फिडेंस आएगा। आपको लोगों को आता सब है माशाल्लाह, आता सब है, इसमें कोई शक नहीं है, वो लेकिन जब हाँ स्ट्रांग कर, मतलब कॉन्फिडेंस हासिल, कॉन्फिडेंस कैसे आता है, जैसे देखिए चीजें समझ लेने से नॉलेज आ जाती है। ठीक है, फिर उसको पक्का कर लेने से, याद कर लेने से, उसके पॉइंट सेव्स कर लेने से, उसको बहुत अच्छी तरह से सब
बार बार रिवाइज कर लेने से कॉन्फिडेंस एडअप होता है, तो उस कॉन्फिडेंस की बस कमी है। ठीक है, आता पूरी क्लास को सब कुछ है माशाल्लाह। तो उस कॉन्फिडेंस को हासिल करने के लिए मैं बार बार कह रही हूँ कि आप देखें, कल बहुत रात तक आप लोगों की वीडियो मैंने इसीलिए बना के भेजी, तो आप लोग भी रात रात भर बैठ के पढ़ें। अगर मैं आपकी वीडियो बैठ के रात भर एडिट कर रही हूँ तो आप भी मत सोए। फिर जब कुछ नींद की कुर्बानी होगी, कुछ दूसरी चीजों की कुर्बानी होगी, तब ये वाली बात आ जाएगी इंशाअल्लाह ताला। तो बस थोड़ा सा वक्त लगाएंगे इंशाअल्लाह ताला, और भी जैसा कि मैंने कहा, वीडियो की तो इतना फायदा है, लाइव क्लास लेने वालों को ही वीडियो काम करते करते करने का फायदा होगा। जो लाइव क्लास नहीं ले उनको तो फिर जाहिर है स्क्रीन बैठ के देखनी होगी ना उन्हें, तो फिर इसलिए लाइव क्लास लेना बहुत आसान होता है बनिस्बत हम अलग से अकेले बैठ के वीडियो सुने बैठ के, वो बहुत ही मुश्किल काम है। तो आप लोगों को तो बहुत आसान है, आप प्ले कर लिया करें, उसको छोड़े नहीं, वरना मैं सारी वीडियो रिमूव कर दूंगी वहां से। चले अब करते हैं ये, इसको लेते हैं हम साइमा को। अब दो दो करेंगे सब लोग, ठीक है। ये थोड़ा सा मैं चाह रही थी कि मैं एक ही लड़की को लेके करूं, जिससे एक ही लाइन पे सोच हो और वो क्लियर हो जाए, इसलिए मैंने सिर्फ इन्हीं को लिया। अब मैं लूंगी आप सबको ही इंशाल्लाह ताला। साइमा, अभी देखिए यकीनन यहाँ पे, इन्ना आ जाएगा। हाँ अब यहाँ पे इन्ना भी आएगा, और मुब्तदा को आप नस्ब में लेके चली जाएंगी जी। और हसर का मफहूम भी डालेंगी। ही बख्शने वाला रहम। अगर पहले आप इतना कर लें, जी। यकीनन अल्लाह करें, इन्नल्लाह, अब फिर उसके बाद हसर का मफहूम डालें। हुआ आ जाएगा फिर, वेरी गुड, हुआ आ जाएगा। और बख्शने वाला तो हुआ की वजह से फिर इसमें हम अल गफूर कर देंगे, तो ये हो जाएगा इन्नल्लाह हुवल गफूरुर रहीम। वेरी गुड, वेरी गुड, माशाल्लाह। इन्नल्लाह हुवल गफूरुर रहीम, पूरा बोलिए। जी, इन्नल्लाह हुवल गफूरुर रहीम। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, माशाल्लाह। यकीनन, इन्ना और और फिर उसमें तू ही। अच्छा, इन्नका अभी अंता, अभी ही मत लगाएं, अभी ही मत लगाएं, ही को छोड़े अभी। यकीनन तू। इन्ना इन्ना अंता। अच्छा शाबाश। इन्ना के साथ नसब वाली जमीर लगेगी। हाँ, नहीं नहीं, सॉरी, इन्नका। हाँ, वो मुझे अभी सोच आपने इन्ना बोलने में अंता भी तो, गलत लग रहा था, वही सॉरी। तो इन्ना अंता तो कोई सुने ही नहीं। इन्ना के साथ, इसीलिए यहाँ पे मैंने बोला था कि इन्ना के साथ अल्लाह, लफ्ज जी अल्लाह को जी, नसब में लेके जाए। तो ये जब इन्ना आया तो बेशक तू, जरा हाँ, देखिए ऐसे यकीनन को हटाएं पहले, चलो ये भी हटा दें अभी। अगर कहे तू, तब यहाँ पे तो अंत आएगा, है ना। अंत आएगा। जी जी, सब लोग बिल्कुल। सुन रहे हैं ना, सब लोग समझ रहे हैं। मैं सिर्फ साइमा से नहीं बात कर रही, सबसे जी कर रही हूँ, मैम, लेकिन अब जाहिर है सबके अल्हम्दुलिल्लाह। माइक म्यूट अनम्यूट करा दूं तो फिर मैं कहाँ जाऊं। ये अंता था। जब यकीनन, जब इन्ना लगा तो अंता रफा की हालत में है, इसको नसब में जाना पड़ेगा, तो इसलिए इन्नका हो जाएगा। अब सही, यकीनन तू जब बना तो ये इन्नका हो जाएगा, इसको मिला देंगे हम, तो कैसे बार बार लिखे, ये छोटा सा नून आके यहाँ ऐड हो जाएगा, जी, इन्नका। तो अब आपको इन्नका तैयार हो गया यकीनन तू, तू। ठीक है। अब अब हसर ठीक, का मफहूम डालेंगी, तो अब ये जो मैंने काटा इसके था लिए इसको फिर लगा हम, दे। हाँ, इसके लिए फिर हमें रफा की जमीर लानी होगी, रफा की जमीर का के हिसाब से लानी सेकंड होगी। पर्सन की। जी, तो फिर दोबारा अंता आ जाएगा। वेरी गुड, माशाल्लाह। इन्नका अंत तव्वाबुर रहीम। वेरी गुड। इन्नका अंत तव्वाबुर रहीम। वेरी गुड, माशाल्लाह। ठीक है, और तर्जुमा यही हो जाएगा यकीनन तू ही। अब यकीनन जो है ताकीद इन्ना से आएगी, और ही हसर का मफहूम हुआ और अल से आ रहा है। अल अत्तवाबु और अर्रहीमु इससे आ रहा है, अल अल लगा दिया दोनों खबर से पहले, तो क्या हो गया, ये हमारा हसर का मफहूम आ गया। चले अब ले लेते हैं, एक मिनट में पार्टिसिपेंट्स देख,
क्योंकि कुछ लोगों ने छुट्टी भी मांगी हुई है। फरजाना आप आ जाइए। जी मैम। यकीनन वो ही सुनने वाला जानने वाला है। अभी आप करेंगी वो वो का बताएं, वो क्या होगा? मैम वो हुआ होगा ना। हाँ वो हुआ होगा, ठीक है। अब हम्म, इसमें इन्ना लगाएं। इन्ना इन्ना वो यकीनन वही सुनने वाला है। नहीं नहीं, अभी हुआ की बात, आप आगे क्यों चली जा रही हैं? ओके मैम। अभी इन हमने आपसे कहा कि आप वो का तर्जुमा करें, आपने बताया हुआ, जी मैम। ठीक है। अब इस हुआ में इन्ना लगाएं। इन्ना हो। वेरी गुड। हुआ को चेंज करके आप नसब की जमीर लाएंगी, नसब वाली टेबल में चली जी मैम। जाएंगी, वहां से हुआ की जगह पे हु लगा देंगी, इन्नहु हो गया। ठीक है, अब आपका तैयार हो गया यकीनन वो, यहां तक हो गया। अब इसमें हसर का मफहूम डालें। अब हु के हिसाब से रफा की जमीर लेके आए। रफा मैम, रफा की जमीर तो फिर मैम हुआ ही होगा ना। हाँ वही होगा, अभी किया ना यहाँ, का के बाद अंता जी मैम। लेके आए, है ना, बिल्कुल जी वही मैम। वही पैटर्न है। ये और ये कोई फर्क नहीं है। तो इन्नहु हुआ, ठीक है। अब हुआ हु के हिसाब से रफा की जमीर हुआ हो गई। अब हमारा तर्जुमा यहां तक हो गया, इन्नहु हुआ। अब सुनने वाला जानने वाला हसर के हिसाब से लेके आए। सुनने वाला देखिए फाइल के वजन पे जाएगा, सुनने वाला समीय। समी समी उन। आगे भी करें। नहीं समी अन आए, क्योंकि मैम ये फिर सुनने वाला और जानने वाला मैम ये मुब्तदा है बनेगा ना। सुनने वाला और जानने वाला समी उन। अच्छा ये बताएं फरजाना, मुब्तदा आखिर में नहीं आता मैम, है? नो नो मैम, ये खबर है सुनने वाला और जान। हम्म समी उन, समी उल, समी उन जानने वाला। अलीमुन। मैम मुझे इसके अलीमुन, समीउन, समीउन अलीमुन। हाँ लेकिन आपको क्या बताया गया कि हसर, अभी देखिए जब ये दोनों हो रहे थे, जब कोई दूसरा करे तो बिल्कुल आप वो जब सोचती है ना, तो आप भी साथ साथ आपको सोचना है। खाली ऐसे बैठ के, हम आपको नहीं कह रहे, पूरी क्लास को कह रहे हैं कि किस तरह से, क्योंकि हमारी ऑनलाइन क्लास है, ये तो बड़ा मुश्किल है, मुझे पता ही नहीं चलता कि किस तरह से कौन क्या कर रहा है। तो जब यहाँ पे किया जा रहा है तो उन चीजों को आप भी बोलेंगी नहीं, जाहिर है, क्योंकि आप बोलेंगी तो सुन तो नहीं पाएंगी। जब सायमा कर रही हैं, जब कोई भी कर रहा है, तो उस वक्त जब वो सोच रही है, उस वक्त आप भी सोच के आंसर अपने दिमाग में तैयार करें और फिर मैच करें कि देखें जो सही हुआ मेरा या गलत हुआ। अच्छा मेरा गलत हो गया, यहाँ पे तो ये लगना था, मैंने ये। तो ऐसा नहीं है कि अगर मैं इस वक्त फरजाना से कर रही हूँ तो बाकी लोग एकदम पैसिव हो जाए। नहीं, आपको पैसिव नहीं होना है। जो सवाल मैं फरजाना से कर रही हूँ वो पूरी क्लास से कर रही हूँ। अब जाहिर है मैं एक ही लड़की को लेके बात कर सकती हूँ, लेकिन ये मैं सिर्फ इस वक्त फरजाना से मुखातिब नहीं हूँ, मैं पूरी क्लास से। अब मैं जब उनसे कह रही हूँ कि इसका ये करिए, तो आप सबको आंसर बोलना है, लेकिन जबान से ना बोले। हालांकि आप अकेली बैठी हैं, क्योंकि आपको हम लोगों का सुनना भी है। आप दिल में बोलती रहे और मैच करती रहे। अगर ऐसा किया होता फरजाना, तो भी आप फौरन कर रही होती। अब नेक्स्ट टाइम से ये तरकीब आपको अपनानी है। देखिए गौर से सुने, और ये हो सकता है कि आपको आता हो, जब माइक अनम्यूट करो तो बहुत से लोग नर्वस हो जाते हैं, आई अंडरस्टैंड। देखिए हुआ तो आपने सही कर लिया, ठीक है, इन्नहु हुआ। लेकिन हसर के मफहूम के लिए मैंने दो कंडीशन बताई थी, कि एक तो रफा की जमीर लाएंगी और खबर को मारफा बनाएंगी। लेकिन आप बोल रही समीउन अलीमुन। हाँ ओके मैम, सॉरी। समझ गई? हाँ जी। चलिए शाबाश, वेरी गुड, करिए। इन्नहु हुवल हुवल समीउ उल गफूरु। आप हुरूफ कमरी और हुरूफ शमसी का रूल नहीं हो रहा है अब यहाँ पे।
हुवल समीउ नहीं होता, हुवस समीउ, ये शमसी है। हाँ हाँ, हक का खौफ, जी मैम ये शमसिया। शमसी है हुवस, ना? जी हाँ, मैम, हक का खौफ अजब गबा, ये कमरी है ना, उसमें नहीं है। हुवस समी समीउल हकीम, हक समीउ, हुवस समीउल हक, हलीम, हलीमु, मुल वेरी गुड। हलीमु। जी हाँ, समीर शमसी है, सीन शमसी है और आइन कमरी है। तो इन्नहु हुवस समीउल अलीम, और ये सारा तो कुरान का है, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लें, ये कुरान में पढ़ते रहते हैं, तो ये तो जी आसान है अल्हम्दुलिल्लाह। चले एक और कीजिए, यकीनन। अब चले छोड़े इसको, यकीनन को छोड़े, ही को भी छोड़े, अभी वो का तर्जुमा बताएं। वो हुआ ही आएगा ना। वेरी गुड। आप हमसे क्वेश्चन करती हैं या आंसर करती हैं? आंसर करती, हुआ हाँ, आएगा तो ना। ऐसे ऐसे नहीं करें, बस बोले हुआ आएगा, है ना? जी मैम, हुआ आएगा। हाँ। अब देखिए, ये यहाँ पे देखिए, ये है ये किसको जमा है कहते हैं? एक को कहते हैं। मैम, ये जमा का सीखा है ना। हाँ, तब हुआ कैसे आएगा? नहीं, फिर हुम नहीं, हुआ, हुआ, हुमा, हुम आएगा। वेरी गुड, हुम हुम आएगा। आएगा, तो हुम यहाँ पे आएगा। इस वो का तर्जुमा आपको मिल गया, हुम। ठीक है। अब जी, उससे आगे आप इस हुम से पहले इन ना लगाएं और बताएं। जब हम इससे पहले इन 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 इन्ना हुम, इन्ना हुम, इन्ना हुम, नहीं। हाँ, अब आप क्या करें कि हुम की जगह आपको नसब वाली जमीर लगानी है। तो नसब वाली टेबल मैम को भी अपने भी दिमाग में हुम ही लाएं है। और वहां से नसब की जमीर पिक करें। मैम उसमें भी हुम ही है ना। वेरी गुड। हाँ, हुमा बोले हुम, ना, इन्ना हुम। इन्नहुम। आगे चलें। जी अब तो आपको यकीनन वो का तर्जुमा मिल गया। अब इसमें हसर का मफहूम डालें, ही का तर्जुमा करें। ही का तर्जमा। मतलब ही का तर्जुमा मतलब है कि ही का मफहूम डालें। मैं अब ही का मफहूम डालने के लिए क्या करना है फरजाना? मैम, ये हमें रफा की जमायर में से हलाना है ना। हाँ, तो तो मैम फिर जमा के लिए तो फिर हम आ जाएगा। तो क्या प्रॉब्लम है, लाए ना, किसने मना किया है? अच्छा, हम ही आएगा ना, जमा का है ना, जमा का सीखा है, बेवकूफ हैं। आप वहां कहाँ चली गई? अभी तो हम लोग यहीं पे हैं। नहीं मैम, मैं वो बता रही कि जमा का सीखा है ना, इसमें हम ही आएगा। जी हाँ, वेरी गुड। करती रहें, करें। तो बोले ना, ये दो यहां तक का हमें सेंटेंस दें। इन्ना हम। वेरी गुड। इन्नहुम। अब बेवकूफ है, बेवकूफ की अरबिक है सुफहाउ। सुफहाउ। अच्छा, इन्ना हम हुमुल हुमुल सुफहाउ। सुफहाउ की जमा क्या होगी? सुफहाउ। हम इसकी जमा नहीं आ रही। मैंने जमा ही आपको बताई है। ओके सफी मैम। इन्ना हुमुल हुमुस सुफहाउ, हुमुस सुफहाउ। हाँ, बिल्कुल मैम सही आप बता रही हैं। इन्नहुम हुमुस सुफहाउ, ये अल लगा दिया आपने, और ये शमसी हर्फ है तो हुमुस हो गया। वहां पे अल है, मैं लिख नहीं रही हूँ यहाँ पे, अल के साथ सीन पे आप चली गई, तो ये हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। आपका ये हो गया। ठीक है। तो अब जी। जब मैं अगली स्टूडेंट को ले रही हूँ, मैं आप सबको ले रही हूँ, लेकिन नाम मैं एक का बुला रही हूँ। आप सब जो मैं कहती जाऊंगी कि यहाँ पे इसका तर्जुमा करें, उसका करें, सब लोग दिल में करेंगी, आवाज से नहीं, दिल में करें, इंशाल्लाह। जिससे आप यहाँ की कंफ्यूजन सुनती रहें और उन कंफ्यूजन से अपने कंफ्यूजन को दूर करती रहें, या फिर आपका आंसर सही है तो आप खुश होती रहें। चलिए ठीक है मैम, शाबाश। अब ले जजाकल्ला। लेते, हाँ, जजाकल्ला फरजाना। अब ले लेते हैं फजीलत को। फजीलत आप आ जाइए और तर्जुमा कीजिए
میں پہلے سینٹینس پڑھتی ہوں، یقیناً وہ ہی فساد کرنے والے ہیں. پہلے ترجمہ آپ کر دیں مبتدا کا جو کہ وہ ہے، بس اتنا ترجمہ کریں. میم ہم آئے گا یہاں، میم جمع ہے نا. جی ہاں، وہ اسی لیے میں اس کو انڈر لائن کر رہی ہوں کہ جمع ہے، تو ہم آئے گا. اب اس کے آگے یقیناً لگائیں. انہم، ہاں انہم. چلیں اس کے بعد میم یہ حسر کا بھی یہی آئے گا، ہم میں آئے گا کیونکہ یہ جمع کیسے گا نا، ہم میں آئے گا آگے بھی. ہاں ہم ہی آئے گا. تو انہم ہم اور فساد کرنے والے. مفسدون، ہم المفسدون. بے شک، ویری گڈ، ماشاء اللہ. چلیں اب پورا پڑھ دیں. انہم ہم المفسدون. ویری گڈ. انہم ہم المفسدون. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے چینج کرتے چلے جاتے ہیں جی میم. اسٹیپ بائی اسٹیپ. یہ پروسیجر ہے جو کہ آپ کو پتا رہنا چاہیے. اب چلیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، تو یہ تو اس کا ترجمہ آپ کو نہیں کرنا ہے. آپ کا یہاں سے یقیناً، چونکہ یہاں پہ ہے نا یقیناً میں ہی اللہ ہوں، تو یہ تو ایسے کوئی نہیں بول سکتا نا. اگر صرف اتنا لکھا ہو تو کیسا لگے گا، اس لیے یہاں پہ بریکٹ میں لکھا گیا ہے. ترجمہ آپ کو اتنا کا ہی کرنا ہے. یہ جو فریز ہے یہ فرام اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کا ہے. تو اللہ نے فرمایا، قال اللہ تعالی. اس کا جو ہے ترجمہ جو کریں گے تو کریں گے قال اللہ تعالی، لیکن آپ کو اس کا نہیں کرنا ہے. یہ اس لیے جی میم. بتایا جا رہا ہے کہ یقیناً میں ہی اللہ ہوں. یہ کون کہے گا؟ یہ اللہ ہی کہیں گے نا، جی میم. آپ اور ہم تو نہیں کہہ سکتے. تو اس لیے یہ بریکٹ میں آپ کا کام شروع ہوتا ہے یہاں سے. تو آپ پہلے میں کی ضمیر لائیں. میم یہاں وہ یا متکلم آئے گی. ابھی کیسے یا متکلم آئے گی؟ مبتدا تو سوری رفع میں میم، ہوتا ہے نا. آنا 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 میم، آنا. ہاں انا آئے گی رفع کی ضمیر جی میں. میم. جی یا میم. متکلم نصب اور جر میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جی تو میم. جی انا میم، آئے گی. سوری. ٹھیک ہے، ویری جی گڈ. آنا. انا. اب آنا اس میں انا میں آپ انا ایڈ کریں، یقیناً ایڈ کریں. میم یہ ان نہ ہی آئے گا. ان نہیں، نہ. انا تو یہ نا. ہو جائے گا ہم کی ضمیر میں چلی گئی یہاں. جی میم. اب اچھا. آپ اس کی انی. ویری گڈ. دیکھیے انا تھا، انا کے جی میم. باکس میں یا متکلم ہے نا یا وہاں، متکلم. جی میم. جی میم. نصب والی ٹیبل میں. تو جی آپ میم. انا پلس یا آپ کا ہو جائے گا جی میم. انی. ٹھیک ہے، انی. رول آپ نے پڑھا تھا نا، یا متکلم اپنے سے جی پہلے میم. زیر کی ڈیمانڈ کرتا ہے. تو انا کی جی میم. ضربت زیر میں چینج ہو گئی اور انی. ویری گڈ. اب انی آپ کا ترجمہ ہو گیا یہاں تک، جی میم. یقیناً میں. اب ہی جی کے میم. ساتھ کریں ترجمہ. ٹھیک ہے سر. یہاں حسر انی. کے لیے هو اللہ. بھائی یہاں پہ تو متکلم کی بات ہو رہی نا، اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں جی. تو اللہ تعالیٰ ہوا انی. کہیں گے. اللہ تعالیٰ اپنے لیے ہی کہیں گے نا، جی حسر کے میم. مفہوم میں ضمیر اپنے لیے لائیں گے، یہی کے انا. لیے لے آئیں گے. میم یہاں آنا آئے گا. ویری گڈ. انا آئے گا کیونکہ میں بار جی بار میم. اللہ تعالیٰ اپنے لیے فرما رہے ہیں جی انی. میم. تو یا انی. کے انا. حساب سے پھر آپ ضمیر لے آئیں. انا اللہ. ویری گڈ، ماشاء اللہ. انی انا انا اللہ. اللہ. انی انا اللہ. انا. یقیناً میں ہی اللہ ہوں، اللہ سبحانہ میں و تعالیٰ ہی نے اللہ. فرمایا. ٹھیک ہے، جی میم. مزہ آ رہا ہے؟ جی میم. الحمدللہ. چلیں اور تھوڑا مزہ لے لیں. چلیں اس کو ایسا کرتی ہوں کہ اس کو میں سمجھاتی ہوں اور میں اس کو کر کے دکھاتی ہوں. جی میم. ٹھیک ہے، غور سے سب لوگ دیکھیں گے. اس جملے میں حسر کا مفہوم بھی پیدا کرنا ہے، انا بھی لگانا ہے اور لام تاکید بھی لگانا ہے. اب سب لوگ غور سے سنیں، میں بالکل آپ کے شو میں جا کے کروں گی اس کو. الدار الآخرۃ حیوان. اسٹیپ بائی اسٹیپ میں بتا رہی ہوں کہ کیسے سوچنا ہے. ریسیپی بتا رہی ہوں میں آپ کو، پروسیجر بتا رہی ہوں. الدار الآخرۃ یہ مبتدا ہو گیا،
حیوان، یہ किसी का माइक अनम्यूट है, प्लीज म्यूट कर लें. ये खबर है. अब मैंने इसमें पहले इन्ना दाखिल किया. जब इन्ना दाखिल कर, देखिए ये मुब्तदा है, और ये मुब्तदा क्या है, अद्दारुल आखिरतु, ये तौसीफी है, मुरक्कबे तौसीफी है. ठीक है. जब इन्ना दाखिल होगा तो जाहिर है ये इसको जब करेगा तो इसकी सिफत भी वो हो जाएगी. ठीक है. तो ये हो जाएगा इन्ना दारल आखिरता. ये पूरा मुरक्कबे तौसीफी. अभी आप देख रही थी अब तक ये मुरक्कबे ज्यादातर क्या था, मुरक्कबे इजाफी. यहाँ पे ये मुरक्कबे तौसीफी है. तो मुरक्कबे तौसीफी में जब मौसूफ चेंज होता है तो सिफत का भी चेंज होगा यार आप, क्योंकि वो तो उसको हर हाल में फॉलो करना है. तो इन्ना क्या कर देगा, इन्ना दारल, ये यहाँ पे जबर लगा दें और इसमें भी जबर आ जाएगी. तो इन्ना दारल आखिरता, ये हो गया आपका इन्ना. इन्ना दाखिल हो गया. अब इसमें लगाते हैं हसर का मफहूम. अब देखिए दार क्या है, मुब्तदा के हिसाब से लाएंगे ना. दार फेमिनिन है और ये सिंगुलर है, तो हम यहाँ पे हिया लगाएंगे. सुभान अल्लाह, क्या लिख रही, यहाँ पे हिया लग गया. और अभी आपने किया अल हैवानू लग गया. ये हिया के साथ अल लगा देंगे खबर में. अल हैवानू, तनवीन हट जाएगी. तो अब कहां तक हो गया मेरा काम, इन्न दारल आखिरता हिया हियल हैवानू. अभी लाम लगाना है, लाम ताकीद भी लगाना है, ये रह गया अभी हमारा. तो हिया से पहले लगाएंगे इन्न दारल आखिरता लहियल हैवानू. और अब तर्जुमा हो गया, बेशक ये हयावानू का क्या होगा तर्जुमा, कोई बताएगा? तो इन्ना की वजह से यहाँ पे हयात से निकला. जी हयात से, हाँ, लेकिन अभी कुछ हयात से निकला जिंदगी है ना. यहाँ सॉरी यहाँ लिखा तो हुआ है. जिंदगी. तो तो अब हमारा जो ये तीनों चीजें डालने पे जो हमारा जुमला तैयार हुआ, वो इन्ना की वजह से पूरा मुरक्कबे तौसीफी चेंज हुआ. इन्न दारल आखिरता, और फिर हिया से पहले लामे ताकीद लहियल हयवानु. हयवानु है ये, ठीक है, हैवान नहीं है, वो जानवर वाला नहीं है. हयवानु अल हियल लहियल हयवानु. ये हो गया हमारा, ये सारी चीजें इसमें ऐड हो गए. अब थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड चीज है, वक्त बचा है हमारे पास या नहीं बचा है? मैम टाइम तो हो गया. टाइम आधे घंटे ज्यादा हो चुका है. नो मैम, एक ही हुआ अभी तो. अच्छा. ये इंडिया पाकिस्तान के टाइम मुझे इतना कंफ्यूज करते हैं, दोनों आधे घंटे का फर्क है. 1 घंटे का होता फिर भी सही था. तो समझ में ही नहीं आता कि आधे घंटे मैंने पढ़ाया, 1 घंटे पढ़ाया, या 1.5 घंटे पढ़ाया, कुछ समझ में ही नहीं आता. सुभान अल्लाह. चलिए चलते हैं, थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा रह गया है, इसको भी कर लेते हैं, वरना फिर अगले हफ्ते तक फिर काफी मुश्किल हो जाएगी. बस 5 मिनट और जल्दी से मैं बता देती हूँ एक बार में. और अगर आप लोग को 3 बार सुनना होगा तो रिकॉर्डिंग के लास्ट हिस्से को वहां सुन लीजिएगा. ये देखें आप बहुत गौर से सब लोग, क्योंकि सिर्फ एक ही बार में यहाँ बात होगी. हाज़र रजुलु, ये क्या है, आपको देखने से क्या लग रहा है, ये मुरक्कबे तौसीफी लग रहा है. क्यों, सॉरी, मुरक्कबे इशारी, आई एम वेरी सॉरी. देखने से ये क्या लग रहा है, मुरक्कबे इशारी. हाज़र रजुलु, ये आदमी. इसका तर्जुमा आप क्या करेंगी, ये आदमी. लेकिन इसमें जब हसर का मफहूम और ये जुमला इस्मिया बनाने के लिए, ये देखने से आपको क्या लग रहा है कि ये नाकिस है, ये अभी क्या हुआ, आपका जुमला इस्मिया नहीं हुआ. लेकिन अगर इसके अंदर आपको हुआ नजर आता है, इसका मतलब हुआ कि अब ये मुरक्कबे तौसीफी नहीं है, क्योंकि मुरक्कबे तौसीफी के बीच में तो हुआ नहीं आता ना, ये जमीर नहीं आती. तो हादा हुआ रजुलु,
इसका मतलब है ये ही आदमी है। हम जैसे किसी को पूछ रहे हैं, यही वो आदमी है, ठीक है। तो अब ये मुरक्कबे तौसीफी नहीं हुआ, ये क्या हो गया, मुरक्कबे, आपका ये हो गया जुमला इसमें, सॉरी, मुरक्कबे तौसीफी नहीं हुआ, ये हुआ कि प्रेजेंस बता रही है कि ये जुमला इस्मिया है। ना सिर्फ जुमला इस्मिया है बल्कि हसर का भी मफहूम इसमें है। इसी तरह से देखें, ज़ालिकल फौजुल अज़ीमु। अब अगर सिर्फ ज़ालिकल फौजुल अज़ीमु, ये बड़ी कामयाबी है ना, या वो बड़ी कामयाबी, इंपॉर्टेंट बात के लिए ज़ालिका, आपने देखा पहले मैंने ये तर्जुमा किया क्योंकि इंपॉर्टेंट बात के लिए ये के लिए भी फार वाला लफ्ज इस्तेमाल हो जाता है। जैसे आप देखती हैं ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, देखती हैं आप। अब जब ज़ालिकल फौजुल अज़ीमु में ज़ालिका के बाद ये मुब्तदा बना, और देखिए ये अल फौजुल, ये हुआ के बाद अल लग गया यहाँ पे, तो ये हो गई आपकी हसर के साथ खबर। तो ज़ालिका, ज़ालिका हुवल फौजुल अज़ीमु। अब ये हो गया यही बड़ी कामयाबी है, ये ही बहुत बड़ी कामयाबी है, ठीक है। तो ये आपको देखने में ये लग रहा था कि ये क्या है, मुरक्कबे, दो मुरक्कब है यहाँ पे, मुरक्कब का भी मुरक्कबे इशारी भी है और तौसीफी भी है। तो दो मुरक्कब का मुरक्कब है, ये कंपाउंड मुरक्कब है। तो यहाँ पे ये जुमला इस्मिया हो रहा है। लेकिन कुरान में देखिए, अरबिक लैंग्वेज, उर्दू में भी हम बहुत कुछ रूल के खिलाफ बोल रहे होते हैं, और हमारा बच्चा बच्चा जाहिल और लिटरेट हर कोई समझ रहा होता है कि हमारा क्या मतलब है ना, बिना ग्रामर पढ़े हुए, वो लोग जो स्कूल भी नहीं गए, उर्दू मीडियम के स्कूल भी नहीं गए, लेकिन वो उर्दू स्पीकर्स हैं, उर्दू बोलते हैं। तो जब हम अपनी ऐसी चीजें बोल रहे होते हैं, जैसे कि अभी यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं अरबिक में, तो हर कोई समझ रहा होता है, उन्हें हमें ग्रामर नहीं बैठ के बतानी पड़ती। क्यों? क्योंकि वो उनकी लैंग्वेज है, वो बचपन से उसी में खेले पले बड़े, तो दे नो इट कि जब इस तरह बोला जाएगा तो हसर का मफहूम आ रहा है। सुभान अल्लाह, एक मिनट। यही वजह है कि कभी कभी अरबिक लैंग्वेज में और कुरान में आप देख रही हैं कि ज़ालिकल फौजुल अज़ीमु आता है और इसका तर्जुमा जुमले की तरह ही किया जाता है। लोगों को वहां पता होता है कि ये मुरक्कबे नाकिस नहीं है, ये जुमला इस्मिया ही है, और इसका हुआ यहाँ से हज़फ हुआ हुआ है, ये हुआ यहाँ से हज़फ हुआ हुआ है। और आप पढ़ती है ज़ालिकल फौजुल कबीर, याद होगा कुरान में, अगर आपने याद पढ़ा होगा तो, ज़ालिकल फौजुल कबीर वहां पे हुआ नहीं है, लेकिन हमको पता यही वो मुरक्कबे नाकिस नहीं है बल्कि जुमला इस्मिया है। और जुमला इस्मिया भी कैसा है, जुमला इस्मिया भी कैसा है, हसर के मफहूम वाला है, जिसमें हसर का, वो जो हसर वाली जमीर थी वो महजूफ है, वो छुपी हुई है, वो गायब है, लेकिन अहले जबान को पता होता है। आप परेशान ना हो कि हम कैसे समझेंगे, हम तर्जुमा, हम उल्मा से समझेंगे, हम तफसीर की किताब उठा के देख लेंगे, हम तर्जुमे की किताब उठा के देखेंगे कि हाँ यहाँ पे तो ये जुमले की तरह है, और हम एक्सेप्ट कर लेंगे क्योंकि ये इनकी लैंग्वेज है। लेकिन यकीन करें कि अहले अरब को पता चल जाता है जब ये बिना हुआ, और मैं भी आपको जुमले दिखाने वाली हूँ। ये चीज जब मैंने जब कोर्स करती थी तो मैं ही समझती थी कि लोगों के दिमाग में ये सवाल नहीं आ रहा है कि अल्लाह समद, क्योंकि जाहिर है मुरक्कबे तौसीफी भी नहीं पता, जुमला इस्मिया भी नहीं पता, तो जब कुछ भी नहीं पता तो इग्नोरेंस इज ब्लिस वाली बात हो जाती है कि फिर वो भी बड़े मजे हैं कि अल्लाह समद। अब चूंकि आपको मुरक्कबे तौसीफी पता है, अगर मैं ये हसर वाली बात और ये वाली बात, मैंने पहले सोचा कि इसको मैं मिस कर दूं, बस यहां तक ही करा दूं और आगे ना कराऊं, फिर मैंने कहा सुभान अल्लाह, फिर तो
सूरतुल इखलास ही समझ में नहीं आएगी। सिर्फ इस वजह से मैं लेके आ गई आपको इस पेज पर भी। तो बस अब गौर से सुन ले। देखिए, ज़ालिकल यौमुल हक। अब ये मुरक्कबे तो मुरक्कब नहीं है, हालांकि देखिए ये क्या है, ये मुरक्कबे इशारी है पूरा, ये पूरा मुरक्कबे इशारी है। और ये इतना अल यौमुल हक्कु, ये मुरक्कबे तौसीफी है। तो ये तो मुरक्कब ही हुआ ना, आपको देखने से ऐसा लग रहा है, लेकिन अहले अरब को पता है कि वो तर्जुमा करेंगे वही सच्चा दिन है, हक है। हक मतलब वो होकर, हक समझ रही ना, एक जो चीज वाक़ई होने वाली होती वो हक है, और बातिल झूठी चीजें होती हैं, गलत चीजें होती हैं। तो अहले अरब जब देख पढ़ेंगे इसको ज़ालिकल यौमुल हक, तो उसका तर्जुमा करेंगे वो जुमला इस्मिया हसर वाले मफहूम के साथ। यही अब मैं तर्जुमा क्या करूं, वही वो ही हक वाला दिन है। ठीक है, इसी तरह देखिए आपने ये पढ़ा होगा ज़ालिकल फौजुल अजीम, ज़ालिकल फौजुल कबीर, है ना। वहां पे ये हुआ की जमीर हज़फ हो गई, लेकिन अहले अरब इसको मुरक्कबे नाकिस नहीं समझेंगे, बल्कि पूरा ये जुमला इस्मिया हसर के मफहूम के साथ है, जिसमें यहाँ पे हुआ की जमीर हज़फ हो गई, मौजूद है लेकिन हज़फ है। बस आप समझे छुप गई, कर्टन के पीछे चली गई। ठीक है, ज़ालिकल हुवल फौजुल अजीम भी आप पढ़ लेंगी, और ज़ालिकल फौजुल अजीम, तो ये जुमला इस्मिया है। और जो मैं ये चीज मैंने मिस नहीं की वो इसकी वजह से, अल्लाहु समद। अब ये तो आप देखें अल्लाहु और अस्समदु, तो ये पूरा का पूरा देखने वाला समझ सकता है, जिसको ये चीज नहीं बताई जाएगी कि कभी कभी ये हुआ कि जमीर हज़फ भी कर दी जाती है, जब जुमला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि वहां पे उस जगह पे मुरक्कबे तौसीफी का कोई काम ही नहीं हो सकता। जब हम पढ़ेंगे सूरह इखलास थोड़ी और ग्रामर करके, तो हमें समझ में आएगा कि यहाँ पे मुरक्कबे तौसीफी की कोई बात नहीं है, यहाँ पे जुमला इस्मिया चाहिए। और ये एक्चुअली मीनिंग दे रहा है अल्लाहु हुवस समदु, जिसमें ये हुआ की जमीर यहाँ पे छुपी हुई है, और इसका तर्जुमा है अल्लाह बेनियाज है। इसीलिए आप देखती है बे को अभी मैंने भी थोड़ा बड़ा किया ना, अल्लाह बेनियाज है, ये बिल्कुल तखसीस हो गई, किसी तरह की कोई उसको मतलब नहीं है ना। तो ये तखसीस हसर का मफहूम है। तखसीस तो हमको उतना वो नहीं लगता, हसर ज्यादा समझ में आता है। अल्लाहु हुवस समदु के बजाय अल्लाहु समद, और ये बिल्कुल भी मुरक्कबे तौसीफी नहीं है, बल्कि ये जुमला इस्मिया है, और वो भी हसर के मफहूम वाला। ये तीनों तराकीब मुकम्मल जुमले हैं, मतलब ये तीनों जो आपको दिख रहे हैं ये जुमले हैं, मुरक्कबात नाकिसा नहीं है। और ये जाहिर है अहले अरब को और एडवांस लेवल पे ग्रामर करने वालों को समझ में आ जाती है। अगर शैतान साहब दिमाग में ये डाल रहे हो कि ठीक है ये तीनों सेंटेंस तो बता दिए गए, कहीं और आएगा तो हम क्या करेंगे, कहीं और आएगा तो आपको वहां नीचे जुमले में नजर आएगा कि जुमला जुमले की तरह तर्जुमा हो गया, तो आप समझ जाएंगे कि यह हसर की वजह से खबर, यहाँ पे हसर की वजह से ये खबर जिसको कि नकिरा होना चाहिए था ये मारफा हो गई। ठीक है, अल्लाहु समदुन होता तब ये होता ना अल्लाहु समदुन, तब ये था कि अल्लाह बेनियाज है, लेकिन हसर की वजह से ये अल आया, हसर का मफहूम, क्योंकि आपको पता है ये समद भी अल्लाह के अलावा किसी और के लिए यूज नहीं किया जा सकता, समद। इसीलिए कभी किसी को नाम हो तो समद न बुलाए, अब्दुस समद बुलाए। इसी तरह अहद भी, अहदुन जो वर्ड है वो भी सिर्फ अल्लाह के ही लिए मखसूस है। अहद कभी भी अरब में किसी के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया, ना कुरान आने से पहले ना कुरान आने के बाद। इसीलिए जब कुल हुवल्लाहु अहद आया तो ये इनके दिल पे एक बहुत बड़े हैमर की तरह पड़ा
کہ انہوں نے یہ لفظ اس طرح سے کبھی یوز ہی نہیں کیا تھا. اٹ واز ویری ہیوی فار دیم. ہم کو تو سورہ اخلاص سمجھ میں آ نہیں سکتی. ان کے وہاں یوم الاحد کہتے تھے, الاحد استعمال ہوتا تھا, لیکن نکیرہ فارم میں احدن کبھی بھی کسی کے لیے, یوم الاحد کہتے ہیں نا منڈے کو, فرسٹ ڈے کو, اسی طرح ال کے ساتھ احد اور بھی دوسری جگہوں پہ استعمال ہوتا تھا, لیکن احدن کبھی کسی کے لیے استعمال نہیں ہوا. پہلی بار قرآن میں آیا قل هو اللہ احد, احدن, تو یہ بہت ہیوی ورڈ تھا. یہاں پہ اسی طرح تو احد بھی کبھی کسی کا نام ہو آپ کے گھر, خاندان, محلے میں, اس کو احد کبھی بھی نہیں بلائیں گی, ہمیشہ عبد الاحد ہی کہیں گی. اگر چھوٹا کرنا ہے تو عبد ال بلائیں, احد نہ بلائیں. اگر ایک ہی نام بلانا تو صرف عبد ال کہیں, لیکن احد کبھی بھی نہ کہیں. اسی طرح سمد کبھی بھی نہ کہیں, عبد الصمد کہیں. اور چھوٹا کرنا ہے, بچے کو پیار سے بلانا ہے تو عبد ال کریں, سمد تو نہ کریں. وہ صرف اللہ ہی کے لیے. یہ دو چیزیں, کچھ نام ہیں جن میں ہمیں بہت احتیاط کرنی ہے. احد کسی کو نہیں بلا سکتے, سمد کسی کو نہیں بلا سکتے, رحمان کسی کو نہیں بلا سکتے. ٹھیک ہے, اگر کسی کا نام عبد الرحمان ہے تو رحمان کبھی بھی نہیں بلائیں گی آپ, عبد ال بلائیں. جیسے میں نے کہا نا عبد الرحمان ہے تو عبد ال بلائیں, کچھ اور چننا مننا بلائیں, لیکن رحمان, احد اور سمد اس نام سے صرف اور صرف اللہ کو پکارے. اسی کے ساتھ کلاس ختم کرتے ہیں. کسی کا کلاس پہلے میں ختم کر لوں, پھر میں آپ کے سوال لیتی ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال ہے کسی کا؟ اب جو لوگ کلاس سے جانا چاہیں وہ جا سکتے ہیں. کسی کا کوئی سوال ہو چھوٹا سا ننھا سا, وہ پوچھ سکتے ہیں. سمجھ میں آ گئی ہے حسر والی بات؟ یہ جو آخر کے 2 پیجز ہیں. جی میم سمجھ آئی ہے، مگر ریکارڈنگ سے 1-2 بار سننے سے اور زیادہ پکا ہو جائے گا. ویری گڈ, ماشاء اللہ. مطلب کہ سمجھنے میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے نا؟ نو میم. یاد رکھیں کہ کبھی کبھی یہ اہل عرب کا طریقہ ہے کہ کبھی کبھی, جیسے آپ کبھی بھی دیکھیں گی کہ خبر ہمیشہ نکرہ آئے گی. یہاں پہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ یہ مبتدا ہے اور یہ خبر ہے. ٹھیک ہے, یہ مبتدا اور یہ یہاں خبر معرفہ دکھ رہی ہے. تو یہ معرفہ حسر کے وجہ سے ہوئی. حسر کی ایک شرط ہے نا کہ خبر معرفہ ہو جاتی ہے, تو یہ خبر معرفہ حسر کی وجہ سے ہوئی. یہ کوئی مرکب نہیں ہے, اور ہوا جو یہاں پہ ہونا چاہیے تھا وہ حذف ہو گیا. اب دیکھیں اگر ذالک الیوم الحق, دل پہ کیسا پڑ رہا ہے. عربک لینگویج صرف اس کے لیے نہیں ہے, یہ دل پہ اترا ہوا کلام ہے. سبحان اللہ. جب ایسے سب غور کرو تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جیسے موسیٰ علیہ السلام کو ٹیبلٹ دی تھی, موسیٰ علیہ السلام کو لکھا ہوا دیا تھا نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اترا, دل پہ اترا. اب آپ دونوں سینٹنس بولے, میں سنیں, میں بولتی ہوں. ذالک هو الیوم الحق, ایک تو یہ ہو گیا جو کہ یہی تھا. اب اس کو سنیں, ذالک الیوم الحق, یہ زیادہ ہیوی پڑا. اسی طرح اللہ هو الصمد. اب یہ اللہ الصمد, بات وہی ہے کہ اہل عرب ہی بہتر سمجھیں گے, اور اللہ کرے کہ وہ دن آئے کہ ہم جب یہ بات دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں تو مجھے بڑی حسرت ہوتی ہے کہ ہم کہاں سے ترجموں کے اندر پڑ گئے, ٹرانسلیشن کے اوپر ڈیپینڈ ہو گئے, اور ہم نے کرچز یعنی بیساکھی اپنا لی اپنے آپ کو, اور واقعی ایک دم بیساکھی والے ہی ہو گئے, ڈسیبل ہی ہو گئے. ورنہ عرب ملک بہت چھوٹا, جب آپ جغرافی دیکھیں, اینشنٹ جغرافی جا کے دیکھیں, عرب ملک سعودی عرب اور اس کے آس پاس کا خطہ ہی بس عرب ہے. ایجپٹ عرب نہیں تھا, شام عرب نہیں تھا, سیریا عرب نہیں تھا, بہت سارے ملک جو آپ دیکھتی ہیں نا
सूडान अरब नहीं था, लेकिन आज हम इन सबको, वहां के सारे लोग अरबी बोलते हैं और हमको भी ऐसा लगने लगा कि वो सब अरब मुल्क है। वो खुद भी अपने को अरबी समझने लगे, हालांकि वो अरबी नहीं है, वो अजमी थे, लेकिन वो अजमी से क्या हुए, अरबी बन गए। क्योंकि जब उन्होंने इस्लाम अपनाया तो हम अपने आप को बहुत आजकल हम समझते हैं कि हम तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक चले गए और अपनी इंटेलिजेंस को बहुत हाई लेवल की इंटेलिजेंस समझते हैं। लेकिन मैं सुभान अल्लाह, मैं सोचती हूँ उनकी अकल को कि क्या ही अच्छी अकल थी कि जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया तो उन्होंने सोचा कि ये तो नमाज, कुरान सब कुछ अरबिक में है, तो हमें तो अरबिक सीखनी है। और उन्होंने अरबिक ऐसी सीखी, न सिर्फ सीखी बल्कि देखिए, जब कोई बच्चा सीखता है, जैसे हम ऑस्ट्रेलिया में हैं तो हमारे बच्चे तो अब इंग्लिश, उर्दू अभी समझ ले रहे हैं। 2-3 जनरेशन बाद अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कि उर्दू जानेंगे भी नहीं क्या होते हैं। तो इसी जानते नहीं है, मतलब दिख रही है वहां जिनकी 2-3 जनरेशन से फैमिलीज हैं, वो नहीं बोल रहे हैं, उनकी अपनी मदर टंग गायब और इंग्लिश आगे गालिब। तो इसी तरह से समझे, जो आपको आज इंग्लिश दिख रही है, बिल्कुल सेम ये होता था। वो अरबिक सीखते थे तो जाहिर है फर्स्ट जनरेशन थोड़ी स्ट्रगल करती है, उर्दू इंग्लिश दोनों लेके चलते हैं हम, तो इसी तरह से वो भी उर्दू और उनकी लैंग्वेज जो भी थी, हिब्रू थी, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस थी, और वो अरबिक सीखते और वो दोनों लेके चलते। फिर अपने बच्चों को उन्होंने अरबिक मदरसे, टीचिंग सब अरबिक ही सिखाई, और 1-2 जनरेशन बाद वो पूरे मुल्क अरबी अरबी ही बोलने लगे, और उनकी अपनी लैंग्वेज वैसे ही गायब हो गई जैसे ऑस्ट्रेलिया अमेरिका में उर्दू गायब हो जाती है 2-3 जनरेशन में। ठीक है, तो इट इज पॉसिबल। जब मैं देखती हूँ, जब बाहर के मुल्कों में मैंने देखा हाँ मदर टंग गायब हो गई और इंग्लिश आ गई, इस चीज ने मुझे परेशान नहीं किया, इस चीज ने मुझे ये कॉन्फिडेंस दिया कि इंशाअल्लाह ताला अगर हम मेहनत करेंगे तो एक दिन वो भी आएगा कि हमारी उर्दू को अरबिक रिप्लेस करेगी, इंशाअल्लाह इंग्लिश नहीं रिप्लेस करेगी। और मेक इट इंटरेस्टिंग, मतलब बच्चों को भी जब पढ़ाए तो इंटरेस्ट, मुसीबत समझ के नहीं, मुसीबत बना के नहीं। ठीक है, जब आप घर में डिस्कस करें तो आप बताएं कि अरबिक बहुत खूबसूरत लैंग्वेज है, ये नहीं कि उफ इतनी मुश्किल है, इसमें तो हुआ की जमीर, इसमें तो हिया की जमीर, इसमें तो ये मुरक्कब, उसके वो रूल, इसके ये रूल, मैं तो पागल हो जाती हूँ जब पढ़ती हूँ। नहीं, इस तरह की कोई सोच जो कभी दिमाग में आती है उसको जबान तक लाना भी, जाहिर हराम हलाल तो अल्लाह करने वाला है, इंसान नहीं है, इसलिए वो वर्ड तो मैं नहीं यूज कर सकती। लेकिन बहुत ही गलत है कि हम अगर कोई चीज को हम गलत बना के किसी को पेश कर दें और वो इंसान उस तरफ उसको खींचने के बजाय हम उससे दूर कर दें। नहीं, आप कहीं भी बैठ के बात करेंगी, कहीं भी अरबिक को इजी बताएं, आसान, और है आसान। अल्लाह ताला ने अगर अरबिक में कुरान नाजिल किया तो ऐसा नहीं था कि अल्लाह ताला को नहीं पता था कि बाकी लोग तो उर्दू बोलेंगे, बाकी लोग तो इंग्लिश बोलेंगे, बाकी लोग तो जर्मन फ्रेंच बोलेंगे, तो हम अरबिक में कुरान उतारे। अल्लाह ताला ने इस लैंग्वेज को चुना, वजह यही है कि सबसे इजी टू गो है, लेकिन हम मेहनत ही नहीं करते। तो बात मेहनत तो करनी होगी ना, इजी का मतलब ये नहीं है कि बिना मेहनत के ही आ जाएगी, जब हम मेहनत करेंगे तो बहुत आसानी से आएगी इंशाअल्लाह ताला। ठीक है, क्लास खत्म करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।